Good evening, dear students. In today's video, I brought a special question of ninth standard here. The question is given in front of you. Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3x by z equals to half x plus y plus z bracket x minus y whole square y minus z whole square plus z minus x whole square. So we have to just prove this. We have to verify whether this term means left hand side is equal to right hand side or not. Okay, so let's start solving this. For solving this thing, for solving this question, we will have to take RHS, means right hand side, first of all. So here we will take right hand side. So write down here, take right hand side RHS. Okay, so we will have to write down this side, half x plus y plus z bracket x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square bracket closed. So we have written here right hand side. Now we have to solve this. Half will be written as the same, x plus y plus z will be written as the same. We will have to apply this bracket. We have read about an identity. We know about an identity of a minus b whole square, means a square minus a square plus b square minus 2ab. This is the identity here. I want to write here in front of you so that you may come to know about the identity properly. This is the identity a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. So this identity will not be used. ठीक है, we will use this identity a minus b whole square means a square plus b square minus 2ab. We will use this identity instead of this one. ये वाली use नहीं करनी है, we have to use this identity. So let's start here. So half x y plus yz, and here a minus b whole square means x minus y whole square. This means a square means x square plus b square means y square minus 2ab means 2xy. Okay, close the bracket again, write down this place. Now this is the y minus z whole square. So a square means y square means plus b square means plus z square minus 2ab means minus 2yz. Now this apply this plus here. A square means z square plus b square means x square. Okay, minus 2ab means 2zx. After applying this formula in all terms, we have to close the bracket like this. Okay, now we have to do one thing. We have to write down here 1 by 2 as the same, and x plus y plus z we have to write as the same. Apply the bracket. Now we can see that this is now we will open the bracket. These are the plus, so no signs will be changed. So here this is there is nothing here, so that's why this will be considered to be plus. यानी जब पीछे कुछ नहीं होता वो प्लस माना जाता है. ठीक है, so this is x square of plus and this is also plus x square. Is there any other term which is x square? No. So x square and x square will make 2x square. Now this is plus y square, this is plus y square. Is there any other term which have y square? No, it doesn't have any. No other term have y square. So we will write here 1 by square, and 1 by square means 2y square, and plus they are of plus. That's why we will write here plus 2y square. Now this is here 2x by 2yz and 2zy will be written as the same. So minus 2xy will be written as same, and here this is minus 2yz will be written as same, and this is minus 2zx will be written as same, and there is only one term left. X square has been written, y square has x here, x and x, 2x square has been done, y square and y square means 2y square has been done. Minus 2xy is written here, minus 2yz is written here, and minus 2zx is written here, and only z square and this z square is left. So one z square and
2, and this is the plus z square, this is also the plus z square, so we will add them, that they will make 2z square. So plus 2z square can be written like this. Now we have to do one thing here. We have to apply the same thing here, half plus x plus y plus z, and we have to take common, that is 2 is here, 2 is here, 2 in this term, 2 is also in this term, 2 is also in this term, 2 is also in this term, so we can take common 2, okay, into, now 2 has been taken outside, that's why x square is left only, and here 2 has been taken outside, so y square is left only, and here 2 is taken outside, so minus xy is left only, here yz is left only, and here zx is left only, and here z square is left only. Signs will not be changed. Okay, now half x plus y plus z, and this 2 will be written as the same as it is written now here, x square, like these are the square terms, so we will take the like terms together. So this is the square term by x square, this is the by square term by square, this is the square term, that is z square, we will write here. Now these three are the like terms with one power, so we will write them together, like x by minus by z and minus zx. So I have written them together. Now we have to do one thing, we have to cut 2 and 2, they will be divided by each other, that's why they will be deducted. So, and this, if the whole term is multiplied by 1, then the term will remain same, so we will write here x plus y, this is x actually, this is x plus y plus z, and this is here x square plus y square plus z square minus x by minus yz and minus zx. Okay, we can apply the simple bracket also, like a small bracket. So here we can see that we have to prove this one here. So now we will open the bracket. Firstly we have to open the bracket, and we will not open the bracket, we will just multiply this term by this term, then firstly we will multiply x with the whole terms of this bracket, and then after we have to multiply by with these all terms, and we have to multiply z with all these terms. So firstly we will multiply x with all these terms, so let's multiply. If we multiply x by x square, then it will, the powers will be added, in multiply the powers will be added. Okay, so here x1 and x2, like x to the power 3, so here x to the power 3 we will write. Now plus here दिस इज एक्स एंड वाई स्क्वायर मीन्स दे विल बी मल्टीप्लाई, सो ये जो है आपस में चिपक जाएंगे, मीन्स एक्स एंड वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एंड बी डिस्कस अबाउट दिस वन प्लस, सो यहाँ पे प्लस लगाओ, और एक्स और जेड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम. ओके, एंड हेयर एक्स, दिस इज माइनस, so apply the minus here, x and x, this is the power 1, this is the power 1, they will make power 2, this means x square, and y will remain same, so x square by, and here we have to see that minus minus written here, so here x by z, x by z, and here we can see that x minus, this is minus, so x 1 and this is the 1x, so x square means they will make a square, if we multiply them together, so x square and z, x square and z will be written as the same. Now we will apply the plus here, now this plus, and that's why we will multiply by with all these terms again. So by x square, by x की multiply होगी तो होगी by x square, and here प्लस लगा है, प्लस लगाओ, by और by स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी by q, एंड प्लस उसके बाद जो है बाई की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, बाई की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, प्लस लगा है, प्लस लगाओ, बाई और जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी जेड स्क्वायर बाई, ठीक है, एंड माइनस लगा है, माइनस लगाओ, बाई और एक्स बाई की मल्टीप्लाई आपस में होगी तो एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर, एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. अभी बाई और माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, अभी बाई और बाई जेड की मल्टीप्लाई होगी तो बाई और बाई तो बाई स्क्वायर हो जाएंगे, जेड सेम रहेगा, तो बाई स्क्वायर एंड जेड विल रिमेन सेम, एंड हेयर माइनस लगा है, माइनस लगाओ, अभी यहाँ पे जेड एक्स और बाई की मल्टीप्लाई होगी तो एक्स बाई जेड हो जाएगा, ठीक है.
अब बात कर रहे हैं हम बाई की सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, बाई हैज बीन मल्टीप्लाइड बाई विद ऑल टर्म्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जेड। सो प्लस लगा है जेड के पीछे तो प्लस लगा दो। अब क्योंकि नए सिरे से जेड जेड की मल्टीप्लाई सभी टर्म से करनी है, तो जेड और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी, जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगा है प्लस लगाओ, यहाँ पे जेड और बाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो जेड बाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लगा है प्लस लगाओ, यहाँ पर जेड और जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो जेड क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, माइनस लगा है तो जेड और एक्स और बाई की मल्टीप्लाई होगी तो एक्स बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है जेड और माइनस लगा है, पहले माइनस लगाओ, जेड और बाई जेड की मल्टीप्लाई होगी तो जेड और जेड तो जेड स्क्वायर बनाएंगे और बाई सेम रहेगा तो बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगा माइनस लगाओ, यहाँ पे जेड और जेड की मल्टीप्लाई होगी, जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स सेम रहेगा तो यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी सी कटिंग हो गई है, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स क्यूब है और हम देखेंगे कि माइनस प्लस वाले टर्म्स को देखेंगे। ये देखो एक्स बाई स्क्वायर प्लस का दिख रहा है। ठीक है, क्या और कहीं पर आपको बाई स्क्वायर एक्स प्लस पर दिख रहा है, यानी एक्स बाई स्क्वायर कहीं प्लस और दिख रहा है? एक्स बाई स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर हम देख तो रहे हैं बट हमें मिल नहीं रहा। एक्स बाई स्क्वायर मिल रहा है देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स बाई स्क्वायर का है प्लस का है, और ये एक्स बाई स्क्वायर का है। इधर पीछे की साइड में देखेंगे कौन सा सिंबल लगा है हमारा, कौन सा साइन लगा है, माइनस का लगा है, यानी ये जो है एक्स बाई स्क्वायर ये वाला ये माइनस का है और ये जो है प्लस का है, तो ये तो हमारे आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारा प्लस एक्स जेड स्क्वायर की बात करेंगे, जेड जेड स्क्वायर एक्स या एक्स जेड स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का कहीं और होगा, तो एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर हम देख रहे हैं कहाँ पे है, एक्स जेड स्क्वायर हमारा जो है एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर एक्स है ये, और यहाँ पर भी जेड स्क्वायर एक्स है। ये प्लस का है लेकिन इसके पीछे जो सिंबल लगा है वो इधर माइनस का लगा हुआ है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो बात एक ही है, चाहे एक्स इधर लिख दो या इधर लिख दो, डजेंट मैटर। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई दिया हुआ प्लस एक्स स्क्वायर बाई दिया होगा कहीं ना कहीं, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई, लेट्स फाइंड आउट एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर बाई ये देखो दिया है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाई दिया हुआ, ये प्लस का एक्स स्क्वायर बाई दिया हुआ है, तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, और इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड, ये माइनस का है प्लस का कहीं दिया होगा, एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड, देखो ये एक्स स्क्वायर जेड है या जेड एक्स स्क्वायर बोल दो इसको, डजेंट मैटर, और ये हमारा एक्स स्क्वायर जेड एंड जेड एक्स स्क्वायर है, जेड चाहे इधर ले आओ तो वो सेम ही रहेगा, ये माइनस का ये प्लस का है, कट जाएगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई, ये प्लस का है तो जेड स्क्वायर बाई, और माइनस का कहाँ पे है, जेड स्क्वायर बाई ये है देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई, ये देखो ये प्लस का जेड स्क्वायर बाई है और ये माइनस का जेड स्क्वायर बाई है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे बाई स्क्वायर जेड, ये माइनस का है तो बाई स्क्वायर जेड कहीं दिख रहा है, बाई स्क्वायर जेड, हाँ ये देखो बाई स्क्वायर जेड ये प्लस का है और ये बाई स्क्वायर जेड माइनस का है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म्स बचे हैं वो कौन कौन से बचे हुए हैं, तो हमारे पास जो टर्म्स बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं एक्स क्यू, तो एक्स क्यू हम ईमानदारी से बिल्कुल लिख लेंगे। ठीक है, एक्स क्यू लिख लिया हमने यहाँ पे, ऐसे शायद अंधेरा आ जाता हूँ, आई एम एक्चुअली मैं कैमरा में नहीं देख रहा हूँ, तो एक्स क्यू लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे प्लस का बाई क्यू लिखना है, जो एक जैसे टर्म है उनको लिखना है, प्लस का बाई क्यू लिख लिया। अभी हमारे पास जो है यहाँ पे प्लस का जेड क्यू भी लिख लिया है, यानी लाइक टर्म्स यानी जो इनकी पावर 3 है उनको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि हमें ये चीज़ बनानी है ना, इसीलिए उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास देखो दिया हुआ है माइनस का एक्स बाई जेड, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है माइनस का एक्स बाई जेड, उसके बाद हमारे पास फिर से माइनस का एक्स बाई जेड दिया हुआ है। तो आपके पास माइनस में 1 रुपया था, फिर 2 रुपये हो गए, फिर माइनस में 3 रुपये हो गए, तो ओवरऑल माइनस में आपके ऊपर कितना रुपया हो गया, 3 रुपये, यानी यहाँ पे 3 है, एक एक्स वाई जेड ये है, माइनस का एक वाई जेड ये है, कुछ नहीं होता है तो बन होता है, यहाँ पे बन छिपा हुआ होता है, तो ठीक है बन छिपा हुआ होता है, कुछ नहीं होता, तो एक एक्स वाई जेड माइनस का ये है, एक एक्स वाई जेड माइनस का ये है, एक एक्स वाई जेड माइनस का ये है, तो हमारे पास जो है ये माइनस का 3x/z हो गया है। डैट इज़ ये देखो यहाँ पर सेम सेम चीज़ आ गई है ना। ठीक है, तो इट इज़ प्रूव्ड, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ब्रैकेट में लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिख देंगे, वेरीफाइड, इट हैज़ बीन वेरीफाइड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। हमको ये सब वेरीफाई करना था, तो हमने इस बारी राइट हैंड साइड को उठा लिया है। राइट हैंड साइड को उठाया, फिर हमने क्या किया, जो है इसको जो है आइडेंटिटी आइडेंटिटी लगाई हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पर हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगाई है तीनों टर्म्स में। एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई, ऐसे ही सेम चीज़ इसके साथ और सेम आइडेंटिटी इसके साथ लगाया है। उसके बाद हाफ एक्स बाई जेड सेम लिखा, उसके बाद हमने एक्स एक्स को जोड़ा यहाँ पे देखो, और बाई बाई को भी जोड़ा। ठीक है, और यहाँ पे जेड और जेड को भी जोड़ा है यहाँ पे देखो। ठीक है, ऐसे जोड़ के हमारे पास ये टर्म्स आए हैं। माइनस टू एक्स बाई माइनस टू एक्स बाई को सेम रहने दिया, क्योंकि कोई इसके साथ कोई जोड़ने वाला है ही नहीं, लाइक टर्म्स को एक साथ जोड़ा जाता है। माइनस टू बाई जेड को भी ऐसे रहने दिया, माइनस टू जेड एक्स को भी ऐसे रहने दिया। ठीक है, उसके बाद टू को कॉमन लिया, यहाँ पे टू से टू कट गया। उसके बाद जो है हमने जेड लाइक टर्म्स यानी जो स्क्वायर वाली पावर्स उनको एक साथ लिख लिया, माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड एक्स को ऐसे रहने दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इनको जो है एक्स के साथ सबसे पहले एक्स इस पूरे ब्रैकेट के टर्म्स की मल्टीप्लाई हमने एक्स के साथ करवाई। उसके बाद फिर प्लस लगा के बाई के साथ करवाई। उसके बाद जेड के साथ मल्टीप्लाई करवाई इन सभी की। तो ये चीज़ है हमारे पास। फिर हमने देखा प्लस माइनस कौन सा है। उसके बाद इनको मैंने प्लस माइनस वालों को काटा। उसके बाद जो बचा हुआ टर्म्स था एक जैसे थ्री की पावर वाले उनको लिखा। उसके बाद जो है इनको ऐड किया तीनों को आपस में। तो इसीलिए हमारा आंसर आ गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। आई होप यू हैव गॉट दिस आंसर कंप्लीटली। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू टुमारो इन द सेम वीडियो। थोड़ा मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको आइडेंटिटी अच्छे से दिख जाए। ठीक है।